GST advisory services of ALA Legal at the position of joint partner. He is also a frequent speaker in GST workshops or seminars organized by Tax Department, CAG, PhD Chamber of Commerce, etc. He provides GST training to personal or corporates also. Before we move further, I would like to say one thing, that in case you guys have any queries, you can use the Q&A section, and we will address your queries after the session. In case if it is required, we will address those during the session also. Secondly, in case you have any technical problem, like you have voice clarity issues, वगैरह, then you can use the chat option. Thank you, everyone. And Pawan Arora sir, over to you. Thank you, Deepali, and thank you, Vineet ji. Good evening, everyone. So, आज हमारा टॉपिक GST aspects in real estate है. So let me share first my PPT with you. So real estate transaction basically GST में it's not a particular topic. तो GST के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में आते हैं, आज वो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवर लुक देख लेते हैं. रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर बेसिकली जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होते हैं. जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर देयर आर टू ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड इन दिस केस. द फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, सो वी आर कॉलिंग इट एज ट्रांजैक्शन नंबर 1. सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन development for landowner. So this is we called it as transaction number 2, which is happening in joint development agreement. We will further discuss construction of flat units intended for sale to buyers by the developer, and the another transaction we will discuss, sale of developed plot of land, transaction number 4, and last one, the sale of landowner share by the landowner, the transaction number 5. So basically today we discuss these 5 transactions in the real estate transaction. So let's start with the joint development agreement. So basically in the joint development agreement, what happens? The landowner transfers the development rights to the developer for construction of a building over that land to further sell it to the prospective buyers. So transfer of development right का क्या taxability है in the GST regime vis-a-vis service tax regime. So अगर हम GST regime की बात करते हैं तो GST regime के अंदर जो GST is payable on supply of goods and supply of service. So the goods have been defined and the service has been defined. The definition of service is very very wide under the GST regime, which says anything other than goods would be considered as service. And there is one exclusion under the schedule 3, which says sale of land will not be treated as supply of goods and supply of service. So considering this, the development rights are falling within the definition of service and have not been excluded from the schedule 3. So therefore the development rights transferred in the GST regime are leviable to GST. So how it is different from the service tax regime? There is a exclusion in the definition of service in the service tax regime,
that was regarding the immovable property. So in the service tax, the Finance Act 1994, the meaning of the service defined as the exclusion from service the immovable property. The immovable property has been excluded from the definition of service. Now, these development rights are the rights which are arises from the immovable property. So the term has not been defined in the service, the immovable property has not been defined in the service tax regime. So therefore, if we talk about what is the immovable property, so General Clauses Act defines the immovable property, the land and any rights arises of the land is also an immovable property. So development right are considered by the courts as immovable property in छेड़ा हाउसिंग. DLF के केस में भी in the 2019 in the service tax regime, DLF commercial के केस में भी by placing the reliance on the छेड़ा housing, the Chandigarh tribunal held that since the immovable property has been excluded from the ambit of the service in the service tax law, so therefore they have said that being an immovable property, development rights being a right arises out of the land is a immovable property, therefore not leviable to service tax regime. लेकिन अगर हम GST की देखते हैं, so GST में immovable property का exclusion नहीं है, GST में जो exclusion है वो है sale of land का. So therefore development right being a sale of right arise of land and not an immovable, so it's a immovable property, but जो GST में exclusion है वो सिर्फ और सिर्फ sale of land की है. So therefore with effect from 1st July 2017 जो डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर्ड हुए हैं या होंगे उस पे जीएसटी लगेगा. अब एक क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हो गए 1 जुलाई 2017 से पहले, लेकिन उनपे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है या कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है. सो डेवलपमेंट राइट जो 1 जुलाई 2017 से पहले ट्रांसफर हो गए हैं, so that altogether depend on the joint development agreement which is entered by the landowner and the developer. So अगर development right completely 1 जुलाई 2017 से पहले ट्रांसफर हो गए तो उसके अंदर जीएसटी नहीं लगेगा, because the levy falls within the service tax regime, और service tax regime के अंदर transfer of development right were not leviable to service tax. So any rights which transferred after 1st July 2017, depending on the joint development agreement, those are taxable. अब क्वेश्चन आता है कि what is the tax rate on the joint transfer of development rights? So basically the tax rate is 18%. इसकी अगर एसएससी कोड की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने जब 1 अप्रैल 2019 से डेवलपमेंट राइट के ऊपर एग्जेम्पशन दी थी, सो दे हैव क्लासिफाइड इट अंडर एसएससी 9972. बट अगर हम प्राइमा फेसाई डिटेल्ड में 9972 देखते हैं तो उसके अंदर ये डेवलपमेंट राइट फॉल नहीं होते हैं. बट इन एनी केस बिकॉज रेजिडुअल एंट्री जो 99,997 के अंदर है वो भी 18% के अंदर है, so it will not impact at present the tax rate. So development rights are taxable at 18%. So अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो ये डिस्कशन किया कि डेवलपमेंट राइट्स 1 जुलाई 2017 से टैक्सेबल हैं. अब 1 अप्रैल 2019 में एक पैराडाइम शिफ्ट आया था इन द रियल एस्टेट सेक्टर. द स्ट्रक्चर ऑफ द रेजिडेंशियल टैक्सेशन ऑन residential apartments have been totally changed in the GST. So क्योंकि 1 जुलाई 2019 से डेवलपर्स को आईटीसी डिनाई कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, बेसिकली डिनाई कर दिया था. So उसके कारण the government has exempted few input services like development rights and long-term lease. So these two services have been exempted by the government, but
दैट इज फॉर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट. सो अगर हम एग्जेम्पशन की बात करें तो एनी ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019, उसमें if that is related to construction of residential apartment. So please note, if it is related to construction of residential apartment, then it is exempted, but it is subject to certain conditions. वो कंडीशन क्या है कि अगर आपका कोई भी फ्लैट अनसोल्ड रह जाता है ऑन द इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट. सो अगर एग्जांपल लेते हैं, सो एक सोसाइटी के अंदर द डेवलपर हैज कंस्ट्रक्टेड 400 फ्लैट्स. उस 400 फ्लैट्स में से 70 फ्लैट्स बिलोंग्स टू द लैंड ओनर एंड 330 फ्लैट्स बिलोंग्स टू डेवलपर. उस 330 फ्लैट्स के अंदर अगर 250 फ्लैट्स सोल्ड हो जाते हैं और 80 फ्लैट्स रिमेन्स अनसोल्ड, सो एज पर दिस एग्जेम्पशन कंडीशन, उस 80 फ्लैट्स जो सीसी वाले दिन अनसोल्ड रह गए, जिसके ऊपर डेवलपर ने टैक्स पे नहीं किया, टू दैट एक्सटेंट वो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी. सो देयर इज अ फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ कि वो एग्जेम्पशन, उसमें क्या है कि 80 फ्लैट्स के प्रोपोर्शनेट जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है डेवलपर के पास, उसके प्रोपोर्शन में डेवलपर को डेवलपमेंट राइट के ऊपर टैक्स देना है, बिकॉज उसकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी. अब वो टैक्स कैसे पे होगा? 80 फ्लैट्स के ऊपर डेवलपमेंट राइट 18% से कंप्यूट होगा और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5% और 1% ऑफ द अनसोल्ड इन्वेंट्री. जो भी लोअर होगा उसका टैक्स पे करना होगा. सो दिस एग्जेम्पशन इज बेसिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट which are sold prior to issuance of CC by the developer. Now a question arises that this exemption is available with effect from 1st April 2019 and only for construction of residential apartment. So there are 2-3 things which we have to see. जो डेवलपमेंट राइट 1 अप्रैल 2019 से पहले ट्रांसफर हो गए, यानी कि 1 जुलाई 2017 से 1 अप्रैल 2019 के बीच में जो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हुए हैं, उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है. अब गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन 1 अप्रैल 2019 से इसीलिए दी थी कि डेवलपर को आईटीसी अवेलेबल नहीं है. अब 1 अप्रैल 2019 से पहले मेरे डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हो गए. लेट अस से मेरे डेवलपमेंट राइट अक्टूबर 2018 में ट्रांसफर हो गए हैं, बट मुझे अभी प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग और सब लेने में टाइम लग रहा था, तो मुझे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना था. इन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 से नया टैक्स स्ट्रक्चर आ गया. सो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुए थे उनके ऊपर 1 अप्रैल 2019 से नया टैक्स स्ट्रक्चर लगना था. लेकिन वही डेवलपर अगर वो डेवलपमेंट राइट्स जो 1 अप्रैल 2019 से पहले ट्रांसफर हो चुके हैं उसके ऊपर तो टैक्सेशन है, और ऐसे केसेस में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया. एंड टिल डेट देयर इज नो सच एग्जेम्पशन दैट कि डेवलपमेंट राइट 1/4 2019 से पहले ट्रांसफर हो गए हैं और प्रोजेक्ट जो है वो 1 अप्रैल 2019 के बाद स्टार्ट हुआ है जो नए टैक्स स्ट्रक्चर में है. सेकेंड, अगर हम बात करें द डेवलपमेंट राइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल यूनिट्स, उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन नहीं है. सेकेंडली नोट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ distinction has been created from 1st April 2019 for the tax rate. One is called residential real estate project, and the another one is another one is real estate project. So residential real estate project में वो projects आते हैं जिसके अंदर residential apartments and not more than 15% commercial apartment हो, और जिस प्रोजेक्ट के अंदर मोर देन 15% कमर्शियल अपार्टमेंट है वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिफाइंड है. तो इवन आरआरईपी में भी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जिसमें कमर्शियल 15% से कम है, उस केस में भी अगर आपका लेटेस्ट एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कमर्शियल आपका
12% है और रेजिडेंशियल 88% है। तो आपको जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट में एग्जेम्पशन मिलेगी वो 88% पे मिलेगी, और 12% जो कमर्शियल प्रोजेक्ट से रिलेट करता है उसके ऊपर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की एग्जेम्पशन नहीं है। नाउ थर्ड एस्पेक्ट, the exemption is not available on the residential plots because the exemption notification specifically provides the exemption for construction of residential apartment. So transfer of development right for construction of residential apartment. If we look the definition of residential apartment in the RERA, so the residential plots will not fall within the definition of residential apartment. So therefore the exemption on transfer of development right in relation to transfer for residential plots will not be available. Now we have discussed कि GST is leviable. We have discussed at the rate in 18%. We have also discussed the exemption. Now if we see हमें किस समय पे टैक्स देना है, so time of supply arises, the liability to pay tax arises when the time of supply arises. So अगर मैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की बात करूं तो 24 जनवरी 2018 तक there is no specific time of supply provided for the transfer of development rights. So therefore the time of supply shall be governed by section 13 of the CGST or SGST Act. Section 13 क्या बोलता है कि in case of supply of service the time of supply shall be the earliest of the following. Basically means आप invoice raise करेंगे या payment receive करेंगे, whichever is earlier. So on raising of invoice or receipt of payment, whichever is earlier, the time of supply in case of service. तो अगर मैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की बात करता हूं तो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट के अगेंस्ट जो कंसिडरेशन मिलता है लैंड ओनर को वो दो फॉर्म में मिलता है, in the form of construction service by the developer on the landowner shares, and secondly monetary consideration. So monetary consideration की बात करें तो since it is whenever it is will be paid, but अगर invoice raise करने की बात करते हैं तो service के केस में on invoice has to be raised within 30 days from the provision of service. So transfer of development right, once transferred, the compliance requirement of raising the invoice immediately arises, and therefore the landowner is required to raise the invoice within 30 days of the transfer of development rights and required to pay tax on that up to 24 January 2018. But जिन cases में landowner ने invoices raise नहीं करी है, so if we look section 13 says in cases where the invoices are not raised, the liability, the time of supply shall arise from the date of provision of service. So in case landowner will not raise the invoice, so liability to pay tax on transfer of development right will arises on the date on the transfer of development right. Now 25 जनवरी 2018 को the government has issued a notification 4/2018. इस notification के अंदर time of supply for the transfer of development right has been specifically provided. So what the notification 4/2018 has provided, the notification 4/2018 में ये provide हुआ कि in case of transfer of development right where the consideration will received by the landowner in the form of construction service. So this notification provides the time of supply in case जहां पर landowner को consideration in the form of construction service मिली है. तो in the form of जब construction service मिली है तो the notification 4/2018 provides the time of supply arises when the landowner developer transfers
the possession or the rights in constructed complex by entering into conveyance deed or similar document, for example allotment letter. So इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. डेवलपर लैंड ओनर ने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए. उसने ये एग्री किया कि 25% एरिया में कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट्स डेवलपर लैंड ओनर को देगा, 75% में कंस्ट्रक्शन करके डेवलपर के पास रहेगा, प्लस इन एडिशन टू इट 10 करोड़ रुपीस कंसिडरेशन एडिशनली डेवलपर लैंड ओनर को देगा. सो देयर आर 2 कंसिडरेशन इन्वॉल्वड इन दिस केस. पहला मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑफ रुपीस 10 करोड़. सेकेंडली द कंसिडरेशन इन काइंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस. सो विद इफेक्ट फ्रॉम 25 January 2018, notification 4/2000 provides that the liability to pay tax on the consideration which is received in the form of construction service, लैंड ओनर को टैक्स कब पे करना है? जब डेवलपर लैंड ओनर को उसके राइट की पोजेशन, उसके कंस्ट्रक्टेड राइट यानी कि 25% कंस्ट्रक्टेड एरिया का पोजेशन जब उसको ट्रांसफर कर देगा बाय एंटरिंग इनटू कन्वेंस डीड और सिमिलर डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट लेटर. सो समटाइम एलोकेशन कर देते हैं फ्लैट्स डेवलपर्स की, और थ्रू एन कन्वेंस डीड तो सेल डीड साइन कर ली, या फिर अलॉटमेंट के लेटर के थ्रू आइडेंटिफाई कर दिए फ्लैट्स. सो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्स एज सुन एज कंस्ट्रक्टेड कॉम्प्लेक्स में राइट्स ट्रांसफर हो जाएगा टू द लैंड ओनर, liability to pay tax on the landowner arises. अब मॉनेटरी कंसिडरेशन की बात करते हैं 10 करोड़ रुपीस की, तो सेक्शन 13 से गवर्न होगा वो अगेन ऑन द रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन और द प्रोविजन ऑफ और द रेजिंग ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. सो 4/2018 में ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन सर्विस. नाउ 1 अप्रैल 2019 से अगेन टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट चेंज हो गया. अब वो क्यों करना पड़ा? बिकॉज सी अगर मैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की बात करता हूं तो अभी वी हैव डिस्कस्ड कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 द डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर्ड फॉर द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैज बीन एग्जेम्प्टेड, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अनसोल्ड इन्वेंट्री अगर रह गई तो अनसोल्ड इन्वेंट्री की एक्सटेंड में एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी और ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट टू द एक्सटेंट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री उसके ऊपर टैक्स देना होगा. सो अब अनसोल्ड इन्वेंट्री कब पता लगेगी हमें? अनसोल्ड इन्वेंट्री का जो डिसाइड होगा पता लगेगा वो तो ऑन द डेट ऑफ सीसी होगा. सो बिकॉज ऑन बिफोर द डेट ऑफ सीसी एग्जेम्पशन है, ऑन द डेट ऑफ सीसी हमें पता लगा हमारे एग्जांपल में कि हमारे 80 फ्लैट्स अनसोल्ड हैं. सो वो 80 फ्लैट्स के ऊपर टैक्स कंप्यूट होगा. सो देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट फॉर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, बोथ इन केस ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन एंड द कंसिडरेशन विच इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, दोनों के केस में मॉनेटरी कंसिडरेशन एज वेल एज कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस हैज बीन डेफर्ड to the date on the issuance of CC or first occupation whichever is earlier. So जिस भी मंथ में फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो जाएगा उस प्रोजेक्ट का या CC इश्यू हो जाएगा, उस डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो जाएगा इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट फॉर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री, बिकॉज एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी. अब ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट फॉर कमर्शियल अपार्टमेंट की बात करें या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट फॉर प्लॉट्स की बात करें, क्योंकि उसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं है तो उसकी मॉनेटरी कंसिडरेशन अगेन सेक्शन 13 में टैक्सेबल है. यानी कि मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट फॉर कमर्शियल अपार्टमेंट और रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ लैंड, मॉनेटरी कंसिडरेशन अगेन सेक्शन 13 से गवर्न होगी. टाइम ऑफ सप्लाई, रिसीप्ट ऑफ payment or in raising of invoice whichever is earlier, and if the consideration is in the form of construction service, so that is on issuance of CC or first occupation. So अगर इसको sum up करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई को,
तो 24 जनवरी 2018 तक सेक्शन 13 नॉर्मली गवर्न होगा। 25 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक मॉनेटरी कंसिडरेशन सेक्शन 13 कंसिडरेशन in the form of construction service governed by notification 4/2018 with effect from 1st April 2019 transfer of residential apartment consideration both in monetary form and in the form of construction service on issuance of CC, transfer of development right for commercial apartment, time of supply for monetary consideration section 13 or consideration in the form of construction service on issuance of OC and first occupation. Now, since tax is payable with effect from 1st July 2017 on this transfer of development right, so who is the person who is liable to pay the GST? So until unless the person is notified under section 93 and 94, the liability to pay tax is on the supplier of the service. And 31 March 2019 तक supplier of service, that is landowner is only the person who is required to pay GST on the transfer of development rights. With effect from 1st April 2019, developer being a recipient of service is liable to pay tax under reverse charge. So please note it again. With effect from 1st April 2019, developer, the promoter or the developer being a recipient of service of transfer of development rights is liable to pay tax under reverse charge. Now valuation की बात करते हैं. Because development right के against in lieu of development rights landowner को जो consideration मिलता है, as we discussed in our example, it could be monetary as well as in the form of construction service. So generally developers enters into a landowner ki okay, we will transfer you the 25% constructed area and we will retain 75%, and in additionally they also agree for some monetary consideration. तो अगर 31 मार्च 2019 तक बात करें तो there is no specific rules or the section for the valuation of the development rights. So development right के against में अगर monetary consideration मिल रही है, that is taxable as normally. But जहां पर partial consideration in the form of in kind होती है, which is in the form of construction service, Rule 27 provides a valuation mechanism which provides for कि ठीक है development open market value, like kind and quality, फिर cost plus 10% and any other reasonable method. So Rule 27 के अंदर development rights की valuation हम कर सकते थे 31 मार्च 2019 तक. So जो भी development rights 31 मार्च 2019 तक ट्रांसफर हुए हैं उसकी valuation we can do under Rule 27. Generally इस cases में जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है, बिकॉज डेवलपमेंट राइट के बदले में हमें क्या मिला, कंस्ट्रक्शन सर्विस फ्रॉम द डेवलपर. सो जो भी डेवलपमेंट राइट की कंसिडरेशन होगी वो कंस्ट्रक्शन सर्विस की होगी. कंस्ट्रक्शन सर्विस की जो वैल्यू है वो जनरली कॉस्ट प्लस 10% बेसिस, मतलब कॉस्ट क्योंकि डेवलपर के पास अवेलेबल होती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड ओनर शेयर्स. So generally the developers valued it on the construction cost and they added 10% margin as provided in the Rule 30. Generally they follow it. अब 1 अप्रैल 2019 से गवर्नमेंट ने इसका वैल्यूएशन मैकेनिज्म चेंज कर दिया. अगर हम सर्विस टैक्स रिजीम की बात करें, सर्विस टैक्स रिजीम के अंदर दो सर्कुलर आए थे, एक 2010 के अंदर और एक 2012 के अंदर. उस सर्कुलर ने इस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कोलैबोरेशन अरेंजमेंट के अंदर एक मैकेनिज्म बनाया था. बिकॉज वो सर्कुलर के थ्रू आया था तो जिन एसएससीज के वो अगेंस्ट जा रहा था, बिकॉज इट वैल्यूड इट वेरी हाई.
तो वो उसको फॉलो नहीं होता था। लेकिन इस बार उन्होंने जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू, प्लीज नोट यहां पर, क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट राइट एग्जेम्प्ट कर दिए, सो इन्होंने यहां पर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू वैल्यूएशन मैकेनिज्म इंसर्ट किया. व्हाट दे सेज, value of supply of service by way of transfer of development rights or FSI by a person to the promoter against consideration in the form of residential or commercial apartment shall be deemed to be equal to the value of similar apartment charged by the promoter from the independent buyer nearest to the date on which such development rights or FSI is transferred to the promoter. तो अगर हम इस पैरा 1A की बात करें तो ये पैरा ए अपनी क्या इंटेंट शो कर रहा है? यहां पर ये बोल रहे हैं कि जहां पर भी लैंड ओनर को डेवलपमेंट राइट के अगेंस्ट कंसीडरेशन रेजिडेंशियल या कमर्शियल अपार्टमेंट के फॉर्म में मिलेगी, वहां पर उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? उस रेजिडेंशियल और कमर्शियल अपार्टमेंट की वैल्यू जो सिमिलर अपार्टमेंट की वैल्यू डेवलपर ने इंडिपेंडेंट बायर से चार्ज की है नियरेस्ट टू द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू द डेवलपमेंट एग्रीमेंट और द ट्रांसफर ऑफ राइट्स. अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां 2-3 प्रॉब्लम्स हैं. यहां एक तो डिपार्टमेंट इसको ये कंसीडर कर रहा है कि जो लैंड है, जो डेवलपमेंट राइट्स है, वो 100% ट्रांसफर कर दिए लैंड ओनर ने डेवलपर को, और जो डेवलपर है वो उसके बदले उसको पूरा का पूरा फ्लैट दे रहा है इंक्लूडिंग द लैंड. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. एक तरफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट सर्विस मान के टैक्स कर दिया, और ये कंसीडर हुआ कि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट में सेल ऑफ लैंड नहीं होता है, लैंड ट्रांसफर नहीं होता है डेवलपर को. लेकिन दूसरी तरफ जब वैल्यूएशन डिफाइन कर रहे हैं तो वैल्यूएशन इस तरीके से डिफाइन करी इन्होंने कि जब इन माय एग्जांपल अगर मैं 25% राइट पे जो कंस्ट्रक्शन होगा वो डेवलपर लैंड ओनर को कर रहा है, तो इफेक्टिवली तो 75% ही लैंड ट्रांसफर हुआ और वो डेवलपर का शेयर है. मेरे 25% का शेयर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके दिया लैंड ओनर ने. लेकिन यहां पर जो वैल्यूएशन मैकेनिज्म है वो ये कंसीडर कर रहा है कि पहले 100% लैंड डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हो गया और उसके 25% पे कंस्ट्रक्ट करके रेजिडेंशियल या कमर्शियल अपार्टमेंट विद लैंड, कमर्शियल अपार्टमेंट विद लैंड डेवलपर ट्रांसफर करता है लैंड ओनर को. सो दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस केस. अब हाउ दिस प्रॉब्लम arises, सी डेवलपमेंट राइट, आपको डेवलपमेंट राइट आपने ट्रांसफर किया, आपने अपना लैंड, एक सर्टेन वैल्यू है उसकी आपके डेवलपमेंट राइट्स की, आपने 25% लैंड तो अपना अपने पास ही रखा हमेशा से, और जो सिमिलर अपार्टमेंट की वैल्यू होती है, जो सिमिलर जो इंडिपेंडेंट बायर से चार्ज होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. उसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो है which ideally should be taken, only cost of construction plus 10% margin. वहां पर मार्केट एप्रिसिएशन है सिमिलर अपार्टमेंट का, और लैंड का भी एप्रिसिएशन है. तो जो लैंड डेवलपर के पास है, 25% लैंड जो डेवलपर के पास खुद के पास ही है, वहां मेयर डेवलपर कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है, वहां पर दे आर कंसीडरिंग कि वो उसको लैंड भी ट्रांसफर कर रहा है. सो इस केस में लैंड का एप्रिसिएशन भी, और देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग एंड ऑल द रीजंस, जो इंडिपेंडेंट बायर से प्राइस चार्ज होगा वो बहुत डिफरेंट, हायर, इट मे बी ऑन हायर साइड. यहां पर इन इफेक्ट अगर इन एसेंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो डेवलपर है वो कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है 25% के ऊपर, तो 25% कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ही वैल्यू होना चाहिए, रादर देन सेइंग कि पूरा का पूरा फ्लैट का वैल्यू इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ लैंड वी विल चार्ज. सो
सेकेंडली, अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन इज फ्रॉम सेक्शन 15. Section 15 of the CGST Act provides that the transaction value shall be the value of the supply on which tax is payable until unless it is not in the form of consideration, monetary consideration. तो जहां पर in kind consideration होता है वहां पर गवर्नमेंट ने डिफाइन किया कि जहां पर इन काइंड कंसिडरेशन होगा वहां थ्रू रूल्स द गवर्नमेंट विल डिफाइन कि उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी. तो वो वैल्यूएशन रूल 27 में डिफाइन करी. अब यहां पर द गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन हैज अमेंडेड द वैल्यूएशन रूल्स विच इज एन एक्सेसिव डेलीगेशन, बिकॉज गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पावर है वैल्यूएशन मैकेनिज्म डिफाइन करने की, but the government has through exemption notification has provided the value of development right. So again it can be challenged because it has अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपली जब 100% डेवलपमेंट राइट्स था उसमें 25% की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो लेट्स से 10 करोड़ रुपीस थी. वो 25% एरिया का जो वैल्यू है बाय इंक्लूडिंग द लैंड वैल्यू वो ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपीस है. सो इन दैट वे मेरा ही लैंड जो मेरे पास ही है 15 करोड़ रुपए का एडिशन हो गया उसके अंदर. सो जहां जहां पर भी ये थ्रू अ कैलकुलेशन जहां जहां पर भी प्रॉब्लम है दिस कैन बी चैलेंज टू रिट कोर्ट. एंड सेकेंडली it also depend on the agreement because it specifically says where the consideration in the form of residential or commercial apartment. So अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में ये बोल देता हूँ कि मैं आपको 75% ही दे रहा हूँ और मैं 25% में आप मुझे कंस्ट्रक्शन करके दो, सो मैं वहां कंस्ट्रक्शन सर्विस ले रहा हूँ ना कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल अपार्टमेंट. सो देयरफॉर इन दैट वी कैन बी प्ले ऑन सेफर साइड बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट दैट आप हमें कंस्ट्रक्शन सर्विस दोगे, आप हमें अपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं करोगे, विच इज जनरली हैपेंस. लास्ट वन, द डेवलपमेंट राइट in respect of individual land which is out of his saving or ancestral land. So like मैं एक अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक मेरा ग्रैंडफादर ने लैंड परचेज किया था. तो वो लैंड के ऊपर मैंने एक डेवलपर को राइट दिया कि ओके आप आओ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो आप आओ और कंस्ट्रक्शन कर दो इसके ऊपर. एक फ्लोर का आपको बेचने का राइट मिल जाएगा, बाकी के फ्लोर्स आप मुझे दे देना कंस्ट्रक्शन करके, और जो एक फ्लोर होगा वो आप उसको सेल आउट कर देना. सो अगर हम सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं तो सप्लाई की डेफिनेशन में जो है सप्लाई इंक्लूड्स दिस इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं एज एन इंडिविजुअल जिसका एक इंडस्ट्रियल लैंड है, बिकॉज मेरे पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं और मैं उसको अपने कंस्ट्रक्शन के लिए एक फ्लोर पर्टिकुलर फ्लोर का राइट्स बेचने का कंस्ट्रक्शन के बाद उसको दे रहा हूं, तो क्या वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? सो अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, उन्होंने एक एफएक्यू के थ्रू क्लैरिफाई करा था कि ये इवन इन केस ऑफ इंडिविजुअल इट इज टैक्सेबल, बट इन माय व्यू बिकॉज ऑफ it is not in course or furtherance of business, it is in the personal capacity out of my ancestral land or maybe out of my saving which I have purchased, it is not taxable. So इस केस पे आपको एग्रीमेंट भी थोड़ी प्रॉपर्ली ड्राफ्टिंग करनी होगी कि because it is not in the course of furtherance of business, so the agreement should also contain such type of clauses. अब हम अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन फॉर लैंड ओनर. तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया कि डेवलपमेंट राइट, लैंड ओनर ट्रांसफर्स द डेवलपमेंट राइट. उसके अगेंस्ट एज वी डिस्कस्ड डेवलपर गिव्स सम कंस्ट्रक्टेड पोर्शन और डू सम कंस्ट्रक्शन ऑन द लैंड ओनर शेयर्स, एज इन आवर एग्जांपल 25%.
So construction service for the landowner done by the developer is leviable to GST. That is very normally, as everyone knows. Now the tax rate, अगर मैं 31 मार्च 2019 तक की बात करूं तो it is simply taxable as 18%, considering it to be a works contract. So the valuation which is can be done under rule 27, as per that valuation जो हमने डिस्कस किया कि जनरली बिल्डर्स डेवलपर्स कॉस्ट प्लस मार्जिन बेसिस पे उसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करते हैं. सो डेवलपर्स जनरली जो लैंड ओनर्स के कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके ऊपर कॉस्ट प्लस 10% के मार्जिन के ऊपर उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में 18% जीएसटी पे करते थे 31 मार्च 2019 तक. बट अगेन इन दिस केस ऑल्सो 1 अप्रैल 2019 से वैल्यूएशन मैकेनिज्म की वजह से टैक्स रेट ट्रीटमेंट चेंज हो गया. सो मैं अगर अब टैक्स रेट ट्रीटमेंट की बात करूं तो टैक्स रेट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अभी हम जब वैल्यूएशन मैकेनिज्म पे जाएंगे उससे हमें पता लगेगा कि जो भी सेल ऑफ फ्लैट के ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो लैंड ओनर के कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द न्यू वैल्यूएशन मैकेनिज्म. हु इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी is the developer. Who is the person liable to pay GST on this? Again time of supply जैसे हमने उसके अंदर डिस्कस किया. फर्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई 24 जनवरी 2018 तक सेक्शन 13 से गवर्न होगा. 25 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक सेम मॉनेटरी कंसिडरेशन सेक्शन 13 और कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट राइट. बिकॉज यहां पर मैं जो सर्विस दे रहा हूं वो दे रहा हूं कंस्ट्रक्शन सर्विस टू द लैंड ओनर और मुझे कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिल रही है? डेवलपमेंट राइट. सो जहां पर कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट राइट फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडेड टू द लैंड ओनर, द टाइम ऑफ सप्लाई arises when the developer transfer the possession or rights in the constructed complex by entering into a conveyance deed. अगेन 1 अप्रैल 2019 से फिर टाइम ऑफ सप्लाई चेंज हुआ. मॉनेटरी कंसिडरेशन सेक्शन 13, कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट राइट. सो मेरे कंस्ट्रक्शन सर्विस दी और डेवलपमेंट राइट के फॉर्म में कंसिडरेशन मिली. उसका टाइम ऑफ सप्लाई है इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर. नाउ इस केस में एक प्रॉब्लम अराइज होता है. सी लैंड ओनर हमारे एग्जांपल में 25% शेयर लैंड ओनर का है और 75% शेयर डेवलपर का है. सो वो 25% शेयर जो लैंड ओनर अपने लिए बनवा रहा है वो उसको फर्दर भी सेल करेगा. सो जब लैंड ओनर भी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट सेल करता है विच हम अभी 5th ट्रांजैक्शन में डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स पेबल होता है. सो जब उसके ऊपर टैक्स पेबल है तो वो टैक्सेबिलिटी तो अराइज हो जाएगी एज सुन एज वो इनवॉइस रेज करेगा. और जब उसका टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होगा विद द कस्टमर, लैंड ओनर की टैक्सेबिलिटी तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वो जब अपने 25% शेयर का फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन में कस्टमर्स को बेचेगा तो उसको टैक्स पे करना है. बट अगर हम उसके मेजर इनपुट सर्विस की बात करें विच इज इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस बाय द डेवलपर, वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब है? जब सीसी आ जाए. सो बाय सीसी से पहले जो लैंड ओनर बेचेगा फ्लैट्स उसके ऊपर उसको टैक्स देना है. लेकिन उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके पास इनपुट सर्विस की इनवॉइस कब आएगी? डेवलपर से ऑन इश्यूएंस ऑफ सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन. सो इसके कारण देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लैंड ओनर के हाथ में आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाए. सो इसका सिंपली है हम डिपार्टमेंट को इंटीमेट करके कर सकते हैं. टाइम ऑफ सप्लाई ने डेफरमेंट करी है टैक्सेबल लायबिलिटी ऑन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. सो लेवी अराइज हो गया क्योंकि एज सुन एज डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हुआ
तो टैक्सेबिलिटी आ गई। मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस दूंगा तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन ये जो डेफरमेंट है सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी पे करने की डेफरमेंट है, तो इसको अगर हमें एक्यूमुलेशन नहीं करना है तो लैंड ओनर डेवलपर से कह सकता है ऑन देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आप मुझे टाइम टू टाइम कंस्ट्रक्शन का इनवॉइस रेज कर दे ताकि उसको ऑन टाइम क्रेडिट मिल सके। क्योंकि अगर डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए यहाँ पर ये फॉलो किया तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट होने के चांसेस हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ डेवलपमेंट राइट ऑल्सो, डेवलपर के यहाँ एक्यूमुलेशन के चांसेस हैं, बट ये जो ट्रीटमेंट करें आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट करके करें कि हमने टाइम ऑफ सप्लाई से पहले इन एडवांस ही टैक्स जमा करा दिया। वैल्यूएशन, अब अगर हम बात करते हैं 31 जनवरी 2019 तक, तो वही अगेन द वैल्यूएशन हैज टू बी governed by rule 27 which says कि where the consideration partly or wholly received in the form of other than monetary consideration, तो वहां पर जो टैक्स जो वैल्यूएशन है वो रूल 27 के अकॉर्डिंग होगी। अगेन यहाँ पर भी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 through para 2A of notification number 11/2017, the government has inserted a valuation mechanism for the construction service provided by the landowner to the provided to the landowner against the consideration in the form of development rights. What they say, what they are treating it, वो ये कहते हैं कि आप वो इसको ये ट्रीट कर रहे हैं जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पर जो लैंड ओनर जो डेवलपर है वो पूरा का पूरा फ्लैट उसको सेल कर रहा है। बी नोटेड हियर, यहाँ पर डेवलपर कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है बट डिपार्टमेंट इज ट्रीटिंग इट टू बी कि यहाँ वो उसको पूरा का पूरा फ्लैट ट्रांसफर कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि फ्लैट के ऊपर जो टैक्स पेबल है वो वैल्यू सिमिलर जो आपने इंडिपेंडेंट बायर से चार्ज की है वही वैल्यू लेंगे, और जब आप टैक्स पे करेंगे तो 1/3 डिडक्शन टूवर्ड्स लैंड आपको प्रोवाइड कर देंगे। बिकॉज दे आर ट्रीटिंग कि यहाँ डेवलपर जो है वो पूरा का पूरा फ्लैट विद लैंड दे रहा है, तो वो उसको फ्लैट का टैक्सेबिलिटी वो मानते हैं कि उन्होंने उसको फ्लैट सेल किया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगेन यहाँ पर भी इश्यूज हैं क्योंकि आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सर्विस एज वी डिस्कस इन आवर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन सर्विस है आपकी, फ्लैट की वैल्यू है आपकी 25 करोड़ रुपए। और ये मैं बहुत कम ले रहा हूँ, अगर मैं दिल्ली जैसे शहरों की बात करूं या बॉम्बे जैसे शहरों की बात करूं जहां पर 90, 80, 90, 95% तक वैल्यू लैंड की होती है। सो 25% लैंड तो लैंड ओनर का ही है। यहाँ क्या कर रहे हैं कि पहले उस 25% लैंड की जो 90 ऑल टुगेदर 95% वैल्यू है वो लैंड की वैल्यू यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और फिर उसकी 1/3 डिडक्शन दे रहे हैं सिर्फ। सो मैं अपने एग्जांपल में बात करता हूं कि अगर 10 करोड़ की कंसिडरेशन 10 करोड़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 90 करोड़ रुपीस लैंड की वैल्यू है उस 25% शेयर की, तो 10 करोड़ रुपए पे टैक्स लगाने की बजाय गवर्नमेंट कह रही है कि आप उसको फ्लैट सेल कर रहे हो, सो आप 100 करोड़ रुपीस के फ्लैट सेल कर रहे हो, 100 करोड़ रुपए में 1/3 डिडक्शन ले लो लैंड की और 67 करोड़ रुपए पे आप टैक्स दे दो एज एन कंस्ट्रक्शन सर्विस। सो सर्विस टैक्स रिजीम के अंदर ये सर्कुलर के थ्रू आया था, इसीलिए डेवलपर्स इसको फॉलो नहीं करते थे, बट अब यहां पर इन्होंने मैंडेट कर दिया है थ्रू नोटिफिकेशन। So until this notification will be challenged, it will be a problem from department to the SSCs, because department notification को follow करेगा और ये notification जो valuation है वो बहुत heavily उसको टैक्स करने के लिए है। As we discussed in our example, जहां पर मैं 10 करोड़ की कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा हूं वहां पर मुझे 67 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स देना है। सो इट इज ऑल टुगेदर मतलब डिफरेंट मैट्रिक्स। तो इसको बिना चैलेंज कर रहे
डेवलपर अपनी मर्जी से अगर रूल 27 कॉस्ट प्लस मार्जिन फॉलो करेगा तो प्रॉब्लम आएगा। इस केस में हम डिपार्टमेंट को अगर ऐसा करते हैं तो डिपार्टमेंट को इंटीमेट करें, बट एडवाइजेबल है कि इसको कोर्ट्स के थ्रू सेटल कराया जाए कि एवैल्यूएशन मैकेनिज्म इज ऑल टुगेदर इनकरेक्ट। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो डिस्कस कर चुके हैं हम। Now we are discussing construction of flats units intended for sale. So now we have discussed two transactions which is come under the umbrella of joint development agreement कि development right transfer होते हैं और construction of immovable property construction of flats for the landowner. Now there is a third leg on the 75% share। हमारे example के अंदर जो 75% share जो developer का है, अब वो डेवलपर उस 75% शेयर्स को कस्टमर्स के लिए बनाता है। सो सेल ऑफ फ्लैट यूनिट विच इज प्रायर टू इश्यूएंस ऑफ सीसी और फर्स्ट ओसी। सो यहां पर अगर हम बात करते हैं सेल ऑफ फ्लैट के अंदर तीन एलिमेंट होते हैं। वन एलिमेंट इज सर्विस, अनदर एलिमेंट इज मटेरियल, थर्ड एलिमेंट इज लैंड। अगर हम जीएसटी से पहले बात करें तो सर्विस एलिमेंट के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, मटेरियल एलिमेंट पे वीएटी लगता था और लैंड पे एज यूजुअल दोनों स्टैट्यूट एक्सक्लूजन प्रोवाइड करते थे। अब यहां पर गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जीएसटी लगता है एंड अगेन लैंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इन्होंने यहां पर लैंड की एक्सक्लूजन एक यूनिक तरीके से दी है विच वी विल डिस्कस। सो देयर इज अ entry 5 in the schedule 2 which says construction of complex building etc intended for sale to a buyer where part of the consideration is received before CC or first occupation is classified as service. So they are treating it to be a service. तो अब इसका क्या क्रक्स है कि अगर कोई फ्लैट का एग्रीमेंट जहां पर पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन is received by the developer prior to the issuance of completion certificate of the project or prior to the first occupation, उस केस के अंदर जो टैक्सेबिलिटी है इट विल बी कंसीडर्ड एज सर्विस। अब अगर हम टैक्स रेट की बात करते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट की, तो 31 जनवरी 2019 तक जो टैक्स रेट्स थे वो थे 18%। 18% is the tax rate and there is a 1/3 deduction towards land. Now because schedule entry 5 of schedule 3 says that sale of land is not taxable, so therefore they have provided the deduction for land, but they have provided a standard deduction of 1/3 of land. So in the previous regime also there are a lot of litigations in which the standard deduction towards the land has been challenged, because in a states like Delhi, Mumbai, as we discussed, 80 to 95% value belongs to the land. Now if we talk about the 2 crore flats in the Delhi, the value of construction is only out of 2 crore flats, the value of construction to the developer is only 30 to 40 lakhs and the value towards land is almost 1.5 crore. But if you go by this deduction, तो ये क्या कर रहा है, 2 करोड़ में आपको एक 1/3 डिडक्शन देता है एंड रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर विच इज ऑलमोस्ट 1.37 करोड़, उसके ऊपर 1.33 करोड़ के ऊपर ये आपको जीएसटी लगा देता है। वेयर एज आइडियली
it should be only taxable only on material and goods, which is 50 lakhs out of 2 crores. बट ये आपको 67% की डिडक्शन दे रहा है, और 1/3 की डिडक्शन दे रहा है 67% पे. सो इनडायरेक्टली दे आर टैक्सिंग द लैंड एज वेल. सो अगेन वी हैव आल्सो चैलेंज्ड इट इन द Delhi High Court और Punjab and Haryana Court में. We have challenged it in the standard deduction of land. So the result is still pending. अब अगर हम न्यू टैक्स रेट्स की बात करते हैं, सो एज वी डिस्कस्ड 1 अप्रैल 2019 से एक मेजर शिफ्ट आया था रियल एस्टेट स्ट्रक्चर के अंदर. सो व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, एक बार उससे पहले हम एक डिस्कस कर लेते हैं कि जो 18% का रेट है कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर विच आर नोटिफाइड प्रोजेक्ट which is provided in the tax rate notification like PMAY projects, वहां पर जो टैक्स रेट्स था वो 12% था और 1/3 की डिडक्शन के बाद 8% रह जाता था. अब 1 अप्रैल 2019 से the government has changed the tax structure for the real estate और ऑप्शन दिया उन प्रोजेक्ट्स को जो ऑलरेडी चल रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. जो प्रोजेक्ट्स 1 अप्रैल 2019 से पहले चल रहे थे उनको ऑप्शन दिया कि आप नए टैक्स स्ट्रक्चर में आ सकते हैं या आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर जो अभी हमने डिस्कस किया वो कंटिन्यू कर सकते हैं. सो देयर इज अ ऑप्शन टू द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स. अब जो नया टैक्स रेट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए था वो क्या था, 5% इफेक्टिव रेट. तो टैक्स रेट है 7.5% और अगर 1/3 डिडक्शन लैंड की कर दें तो इफेक्टिव रेट 5% रह जाता था. बट what it is available, it is available on the residential housing properties. So what are these residential housing properties? As we discussed, residential real estate project, there is a defined what they says, ऐसे प्रोजेक्ट जिनके अंदर 15% या 15% से कम कमर्शियल अपार्टमेंट्स हैं उसको इन्होंने बोला रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. सो 15% या 15% से कम अगर कमर्शियल अपार्टमेंट है तो दैट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. उसके अंदर बोथ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट एंड कमर्शियल अपार्टमेंट का जो टैक्स रेट होगा वो 7.5% होगा और आफ्टर 1/3 डिडक्शन टूवर्ड्स लैंड इफेक्टिव रेट 5% होगा. ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें कमर्शियल 15% से ज्यादा है उनको इन्होंने बोला रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. उस केसेस में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है वो इफेक्टिवली 5% से टैक्सेबल होंगे और जो कमर्शियल अपार्टमेंट हैं वो अगेन ओल्ड टैक्स रेट विच इज 18% एंड इफेक्टिव 12% वो उसी के ऊपर टैक्सेबल होंगे. सो कमर्शियल प्रोजेक्ट इन अ विच द कमर्शियल अपार्टमेंट्स जो 15% या 15% से ज्यादा है किसी प्रोजेक्ट में, उस केस में वो पुराने रेट से ही टैक्सेबल होंगे. अब आते हैं, द गवर्नमेंट हैज डिफाइंड अफोर्डेबल रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टीज. जीएसटी काउंसिल ने इसको डिफाइन किया था कि 60 स्क्वायर मीटर्स और 90 स्क्वायर मीटर्स इन नॉन मेट्रोज एंड वैल्यूज अप टू 45 लाख. सो प्लीज नोट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसा अपार्टमेंट, ऐसा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या ऐसा कमर्शियल अपार्टमेंट जिस प्रोजेक्ट में 15% से कम कमर्शियल अपार्टमेंट है, अगर उस अपार्टमेंट का एरिया 60 स्क्वायर मीटर से कम, 60 स्क्वायर मीटर इन मेट्रो सिटीज एंड 90 स्क्वायर मीटर इन नॉन मेट्रो सिटीज एंड उसकी वैल्यू जो है वो 45 लाख से कम है, बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, तो उस पे 1% का जीएसटी लगेगा इफेक्टिवली. सो रेट इज 1.5% एंड आफ्टर 1/3 डिडक्शन इफेक्टिव रेट इज 1.51. एंड अफोर्डेबल हाउसेस जो पहले इफेक्टिवली 8% पे चार्ज होते थे वो अब इफेक्टिवली 1% पे आ जाएंगे.
सो जो PMAY के प्रोजेक्ट्स थे जहां पर CLS, एक उसमें एग्जांपल होता है कि बायर ने CLS स्कीम के अंदर लोन लिया हुआ है या वो प्रोजेक्ट PMAY में बना है, तो वहां पर पुरानी स्कीम में 8% इफेक्टिव रेट लगता था। अगर वो नए टैक्स स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गया वो पिछला प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर वो 1% के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब नए प्रोजेक्ट जो 1 अप्रैल 2019 के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, न्यू प्रोजेक्ट, उनके लिए नई टैक्स स्ट्रक्चर में आना कंपलसरी था। सो नए टैक्स स्ट्रक्चर में आना कंपलसरी था और वहां पर जो टैक्स रेट्स थे वो इफेक्टिव 1% फॉर अफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और 5% इफेक्टिव रेट एज वी डिस्कस्ड ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड ऑन कमर्शियल अपार्टमेंट इन द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब जो नए टैक्स रेट्स की कंडीशंस थी वो एक बार डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन इसकी थी कि आपको जो टैक्स पेमेंट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ कैश में करनी है, आप क्रेडिट से पेमेंट नहीं कर सकते इसकी। अब इसमें एक प्रॉब्लम अराइज हुआ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में जिन्होंने नया टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया, अगर उनको, क्योंकि उनका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट एलिजिबल था कैरी फॉरवर्ड करना, तो अब उनके पास क्रेडिट तो है और उनकी कोई और सप्लाई है नहीं, उनके पास एक्यूमुलेटेड क्रेडिट तो है, बट जो नए टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर टैक्स पे करना है वो कैश में पे करना है। तो उस एक्यूमुलेशन का क्या होगा, वो क्रेडिट एज इट इज एक्यूमुलेटेड रहेगा अगर उसको यूटिलाइज करने के लिए डेवलपर के पास कोई और सप्लाई नहीं है तो। सो दिस इज अ प्रॉब्लम faced by the developers who have shifted to the new tax structure. The second condition is कि डेवलपर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्होंने डिनाई कर दिया, सेइंग कि आपको वो 5% या 1% टैक्स देना है और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेंगे। मगर अगर हम सेक्शन 16 की बात करें, सेक्शन 16 of the CGST Act or the State GST Act provides that input tax credit can be availed on any supply of goods or services in the course or furtherance of business subject to the 4 conditions. So उन्होंने वहां पर 4 कंडीशन डिफाइन कर दी सेक्शन 16 के अंदर। अब इसके अलावा पूरे जीएसटी लॉ के अंदर अगर सेक्शन 17(5) को हटा दें तो डेवलपर के ऊपर क्रेडिट लेने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है थ्रू द एक्ट। मगर यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स 5% इस कंडीशन के साथ दे दिया कि आप आईटीसी नहीं ले सकते। सो आईटीसी कैन नॉट बी डिनाइड थ्रू मी अ नोटिफिकेशन। मुझे मेरा एक्ट माई सेक्शन 16 nowhere restrict to avail me ITC, तो ये नोटिफिकेशन कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। सेकंड पॉइंट, अगर गवर्नमेंट का ये प्ली है कि हमने आपको कंसेशन रेट ऑफ टैक्स दिया है इसलिए हम आपको ITC रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सो माय सेकंड प्ली विल बी कि आप इसको ऑप्शनल रखें। आप फर्स्टली द लॉ nowhere restrict me to avail ITC because it is in course or furtherance of business। और अगर आपको यही एक बैकअप में है कि आपने मुझे कंसेशनल रेट दिया है तो आप उसको ऑप्शनल रखें। यू शुड प्रोवाइड बी द ऑप्शन, बिकॉज जो प्रोजेक्ट 1/4/2019 के बाद स्टार्ट हुआ उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। सो ऑन दीज 2 ग्राउंड्स द डेवलपर्स whosoever facing the problems in non-availment of credit and their project cost is increasing due to this restriction, they can challenge it in the writ court saying that there is no restriction under the statute for availing the ITC to the developer and notification is going beyond the act as well as the rules. In the rules there is no restriction. Now reversal of ITC attributable to construction in a project time of supply which is on or after 1st April. So जो projects जो developers ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2019 के बाद शिफ्ट हुए हैं नए टैक्स स्ट्रक्चर में,
उनको रिवर्सल करना था उस आईटीसी का जो एट्रीब्यूटेबल है 1 अप्रैल 2019 के बाद, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2019 के बाद नया टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सो जब ये रिवर्सल की कंप्यूटेशन उन्होंने डिफाइन करी, तो उन्होंने इसमें एक कैपिंग लगाई। वो कैपिंग क्या थी? वो कैपिंग थी कि अगर आपकी इनवॉइसिंग और आपकी रिसिट में 25% से ज्यादा का डिफरेंस है, तो इस कैलकुलेशन के लिए आपकी जो वैल्यू कंसीडर होगी वो रिसीट प्लस 25% कंसीडर होगी। तो इस कैपिंग की वजह से, इस 25% वाली कैपिंग की वजह से मेरा जो आईटीसी एलिजिबल है वो कम हो जाता है, और जो मेरा आईटीसी रिवर्सल के लिए है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, उस कैपिंग की वजह से मेरा जो एलिजिबल, लेटर से मेरा 10 करोड़ का आईटीसी मैंने लिया था 31 मार्च 2019 तक, उस 10 करोड़ के आईटीसी में से 3 करोड़ का आईटीसी मेरा 1 अप्रैल 2019 के बाद एट्रीब्यूटेबल था, और 7 करोड़ का क्रेडिट मेरा 31 मार्च 2019 तक के कंस्ट्रक्शन के लिए एट्रीब्यूटेबल था। अब 3 करोड़ का जो क्रेडिट मेरा 1 अप्रैल 2019 के बाद के कंस्ट्रक्शन को एट्रीब्यूट है, वो मुझे रिवर्स करना होगा अगर मैं नया टैक्स स्ट्रक्चर ऑप्ट करता हूं। बट वहां पर एक कैपिंग की वजह से जो 25% ऑफ रिसीट should be not, if the receipt is not more than 25% of the billing amount, जो वो कैपिंग है एक, वो कैपिंग की वजह से मेरा रिवर्सल जो है, मेरा एलिजिबल क्रेडिट रह जाता है 3 करोड़, लेट्स 2 करोड़, और मेरा रिवर्सल बन जाता है 8 करोड़। सो मेरा एलिजिबल क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है सीधा 7 करोड़ से 2 करोड़, और मेरा जो रिवर्सल है वो सीधा 3 करोड़ से 8 करोड़ बन गया। सो देयर इज अ टोटली लॉस बिकॉज ऑफ द कैपिंग, और उस कैपिंग का कोई रैशनल ही नहीं है। दैट इज टोटली without any reasons they have put it a capping on this. So if any of the developer is facing issue because of this capping, they are required to reverse any excess credit. They can challenge it in the writ court. So in the new tax structure there are many conditions. As far as हमने अभी जो 3 कंडीशन डिस्कस की हैं, तीनों एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हैं। ये 4th कंडीशन हम डिस्कस करेंगे 5th ट्रांजैक्शन में। Excuse me, sir. Sorry for the interruption. I just want to know that can we have some queries because we are running out of time. 5 मिनट और। Yeah, sure, sir. Thank you, sir. Okay. थर्ड जो इसकी और कंडीशन है वो है कि आपको जो 80% ऑफ द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज हैं वो रजिस्टर्ड परचेज बायर से खरीदने हैं, सेलर से खरीदने हैं। और अगर आपका 80% से परचेजेस रजिस्टर्ड डीलर से शॉर्टफॉल होगा तो आपको आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। और सीमेंट जो है आपको 100% रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना है। There are another compliance requirement which are now be followed or to be followed by the developers कि उनको separate इनवर्ट सप्लाई की डिटेल मेंटेन करनी थी, उनको कैलकुलेशन करना है शॉर्टफॉल का 30 जून तक ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, और उनको वो लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज करनी है। नाउ लेट अस डिस्कस द 4th ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट्स। So sale of developed plots, as we discussed, sale of land is excluded from the Schedule 3. It is neither treated as supply of goods nor supply of service as per Schedule 3 of the CGST Act. So therefore it is not leviable to GST. But service tax regime से एक फाइट चलता आ रहा है। वो फाइट क्या है कि डेवलप्ड प्लॉट्स जब हम बेचते हैं तो डेवलप्ड प्लॉट में प्लॉट जाता है, प्लॉट ऑफ लैंड जाता है, और उसकी डेवलपमेंट भी होती है। तो डिपार्टमेंट इसको बोलता है कि आप डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट्स सेपरेटली कर रहे हैं बायर के लिए, इसलिए आप टैक्स देंगे ऑन द डेवलपमेंट पोर्शन। सो अगर हम इस लिटिगेशन की बात करें तो जो अभी चल रहा है, और अगर इस लिटिगेशन से बचने की बात करते हैं हम, तो इस लिटिगेशन से बचने का एक तरीका है कि आप
डेवलप अपने एग्रीमेंट के अंदर इसकी वैल्यू सेग्रीगेट कर दें, डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर जीएसटी चार्ज कर लें, और साथ ही साथ अगर हम डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे तो डेवलपमेंट करने के लिए जितने एक्सपेंडिचर हुए हैं उसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा और अल्टीमेट इंपैक्ट सिर्फ वैल्यू एडिशन पे आएगा। द फिफ्थ ट्रांजेक्शन इज सेल ऑफ फ्लैट्स यूनिट बाय द लैंड ओनर। सो हमारे एग्जांपल में जो 25% शेयर लैंड ओनर का था, वो जब लैंड ओनर प्रायर टू इश्यूएंस ऑफ सीसी अपने इंडिपेंडेंट बायर्स को बेचेगा, so that is taxable on the same tax structure as we discussed in earlier। इसमें एक कंडीशन है जो नए टैक्स स्ट्रक्चर में है, वो क्या कंडीशन बोलती है, क्योंकि अगर आप देखें नए टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर सेल ऑफ क्रेडिट डिनाइल है, तो कंसेशनल रेट जो 5% का टैक्स रेट है उसके ऊपर क्रेडिट डिनाइल है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। उसका एक्सेप्शन क्या है कि जो डेवलपर ने लैंड ओनर को टैक्स चार्ज किया ऑन द कंस्ट्रक्शन सर्विस, उसका लैंड ओनर क्रेडिट ले सकता है, लेकिन वो कितना क्रेडिट ले सकता है, उसकी कंडीशन ये है कि लैंड ओनर ने अपने जो फ्लैट फर्दर बेचे हैं वो प्रायर टू इश्यूएंस ऑफ सीसी बेचे हों और उसके ऊपर टैक्स पे किया हो, और वो क्रेडिट उसी एक्सटेंट तक मिलेगा जितना लैंड ओनर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई ऑन द सेल ऑफ फ्लैट पे किया है, मैक्सिमम उतना ही क्रेडिट मिलेगा ऑन द इनपुट्स which is received from the developer in the form of construction service. So okay, Deepali, Yeah, thank you so we can much, sir. move on. Just give me a minute. Yeah. Hello. Yes. Sir, we have some queries. Thank you for this webinar. So I'm starting with the queries. So I just first query है हमारी राजेश जी की। उनका क्वेश्चन है whether interest on secured loans, unsecured loans, partners capital, FSI charges paid to state government will be included in total purchase or excluded from both numerator or denominator. ये क्वेरी कहाँ पर है, एक बार दिखाएंगे मेरे को? सर ये Q&A सेक्शन में आ रही है। राजेश जी की क्वेरी है। Whether interest on secured loan, unsecured loan, partner capital, FSI charges paid to state government will be included in total purchase or will be excluded from both। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मेरे को एक्चुअली। ओके, हम इसको क्वेश्चन को बाद में टिकअप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राजेश जी का, whether landowner has to take separate registration and whether he will be bound by options selected by developer to opt for one person scheme। लैंड ओनर को रजिस्ट्रेशन सेपरेटली लेना है, और जो ऑप्शन था वो लैंड ओनर का इंडिपेंडेंट ऑप्शन है और डेवलपर का इंडिपेंडेंट ऑप्शन है, बट जनरली वो जो प्रैक्टिस रही है वो उन्होंने डेवलपर का ही फॉलो किया है, बट हाँ हियर दे हैव अ ऑप्शन सेपरेटली टू द लैंड ओनर। सर राजेश जी को मैंने अनम्यूट कर दिया। राजेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। आपकी आवाज नहीं आ रही राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी आ रही है, बताइए। ये पूछना चाह रहा था कि जो 80-20 का रूल है उसमें ये है कि आपकी सप्लाई इंटरेस्ट एक्सपेंस है। पर आपकी आवाज प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है आवाज। सर इंटरनेट इशू है आई थिंक सर। हेलो, हाँ जी सर जो लोन है या वो रजिस्टर वो विनीत जी सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। हाँ जी राजेश जी आपकी आवाज नहीं। कोई बात नहीं राजेश जी की और बहुत सारी क्वेरीज है, मैं आंसर कर देता हूँ पहले उनको। ठीक है सर, ठीक है जी। दीपाली, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपाली अनम्यूट है, म्यूट है अभी। Okay. Am I now audible now? Yes.
Yeah, I'm saying Rajesh ji ka third question है whether RCM applicable on FSI charges paid to state government for additional construction area. राजेश जी, FSI चार्जेस जो आप स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन एरिया, For additional construction area. राजेश जी इसको दो पॉइंट पे एनालाइज करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो FSI चार्जेस आर टैक्सेबल. सेकेंडली द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो अंडर रिवर्स चार्ज. बट इसमें एक आपको एग्जेम्पशन एंट्री चेक करनी होगी. देयर इज वन एग्जेम्पशन एंट्री which is for the construction, for the services provided by the government which are falling under the article 243 Q समथिंग है. तो वहां पर एक एग्जेम्पशन एंट्री है. अगर ये FSI चार्जेस जो आपने स्टेट गवर्नमेंट को पे किए हैं वो एग्जेम्पशन एंट्री में फॉल कर रहा है तो आपकी एग्जेम्पशन है. अदरवाइज यस, FSI चार्जेस विच यू आर पेइंग टू द स्टेट गवर्नमेंट are leviable to tax under reverse charge until it is exempted under that specific entry, which is something 12th schedule article. They have reference article 243Q something and 12th schedule something. So I am not exactly remember that entry. Okay, sir. Sir, now I am clear, sir. So now my voice is audible, sir? Yes. I am Rajesh Bhawala. जी. हेलो. जी सर. हाँ सर. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो सेक्शन जो नोटिफिकेशन में 80-20 का रूल है उसमें जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो पार्टनर्स को करें, अनसिक्योर्ड लोन को करें, सिक्योर्ड लोन बैंक्स को करें, वो हमारी 80% जो रजिस्टर्ड डीलर से परचेज है वो कैसा ट्रीटमेंट होगा उसका? सर ये सिक्योर्ड इंटरेस्ट जो है, जो इंटरेस्ट है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस तो है ही नहीं. तो वो 80% का जो रेशियो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोक्योर करनी है फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर. सो ये उस केस में कंसीडर नहीं होगा. तो यू कैन एक्सक्लूड इट. सर वो वैसे एग्जेम्प्टेड सप्लाई में नहीं आएगा क्योंकि अपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन तो इंटरेस्ट को लेते हैं ना. नहीं, बट इस कंप्यूटेशन के लिए नहीं आएगा ना सर. आप 80% के लिए इसको नहीं लेंगे. अच्छा, डिनोमिनेटर और दोनों में से नहीं लेंगे ना सर? हाँ, नहीं. ओके सर, थैंक यू. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अनोनिमस है. इन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है. एज पर नोटिफिकेशन नंबर 3/2019 dated 29th March 2019 which states that GST has to be paid on TDR even if completion certificate is issued on the unsold flats. Is it applicable to those builders also who have opted for old scheme? Which states that GST has to be paid on TDR even if completion certificate is issued on the unsold flats. यहाँ पर जो क्वेरी है मैंने अभी क्लैरिफाई किया था. 31 मार्च 2019 तक तो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट टैक्सेबल थे, उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं थी. 1 अप्रैल 2019 से जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट एग्जेम्प्ट हुए थे वो एग्जेम्पशन की कंडीशन ये थी कि आपके जो फ्लैट्स वो अगर कोई अनसोल्ड रह गया सीसी वाले दिन तो वो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी. सो अगर आप क्लियरली इस बात को समझे, 31 मार्च 2019 तक ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट टैक्सेबल थे. 1 अप्रैल 2019 से ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट फॉर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वो एग्जेम्प्ट हो गए सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अगर कोई फ्लैट अनसोल्ड रह गया ऑन द डेट ऑफ सीसी तो वो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी और डेवलपमेंट राइट के ऊपर टैक्स देना होगा. सो आई थिंक दिस clarification will answer this query. Okay, thank you, sir. So next question है anonymous है. We have entered a JDA with a developer for developing a piece of land on area sharing method in June 2014 when there was no GST. We are going to get possession of our share in 2020.
The developer says that we have to pay GST at the rate 12%, though we are contesting that GST needs to be paid by him post notification number 3/2019. We have entered into a JDA with a developer for developing a piece of land on area sharing method in 2014. Yeah. When there was no GST, we are going to get possession of our share in 2008. Developer says that we have to pay GST to. We are not contesting that GST needs to be paid by him post issue of notification. No, so here the question is not clear whether they are talking about the tax on development right or the tax on the construction service. मुझे जो लग रहा है they are talking about the tax on construction service. So tax on construction service तो day 1 से payable है 1 जुलाई 2000. तो as we discussed there in this there are two transactions. So first transaction है कि डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हो गए जून 2014 में. तो उसके ऊपर क्योंकि जून 2014 में ट्रांसफर हो गए हैं तब सर्विस टैक्स रिजीम था और सर्विस टैक्स लगता नहीं था, तो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. अब सेकंड बात करते हैं, जब इनको लैंड ओनर को इनका डेवलपर से शेयर मिल रहा है तो डेवलपर ने क्योंकि कंस्ट्रक्शन सर्विस दी है तो डेवलपर उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेगा. अब यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया कि उस कितनी वैल्यू के ऊपर टैक्स चार्ज होगा और कितना होगा. तो अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो वैल्यूएशन रूल्स जो हैं, वैल्यूएशन मैकेनिज्म 1 अप्रैल 2019 से चेंज हो गया. 1 अप्रैल 2019 से पहले वैल्यूएशन आप कॉस्ट जो डेवलपर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था उस पर प्लस 10% मार्जिन ऐड करके आप 18% जीएसटी दे सकते थे. लेकिन अब 1 अप्रैल 2019 के बाद जो नया वैल्यूएशन मैकेनिज्म आया वो ये कहता है कि सिमिलर फ्लैट में 1/3 लैंड की वैल्यू डिडक्ट करके जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी है, अगर आप ओल्ड स्कीम में है तो 12% हो जाएगा इफेक्टिव, अगर आप नए स्कीम में तो 5% हो जाएगा, वो आपको जीएसटी देना होगा. Okay. So next question है दीपांशु अग्रवाल जी का. He is asking whether TDR to be understood or restricted to meant for big builders, or even if an individual enters into JDA with some builder will be fall under this, assuming individual is not having real estate business. I'm not able to see query. So ये chats में है. Chats में है. कौन सा है सेकंड? whether TDR to be understood. Yes sir. Whether TDR to be understood or restricted to meant for big builders, or even if an individual enters into JDA with the some builder will fall under this. Everyone will fall under this. Transfer of development right is same treatment for everyone, but as I discussed, if my land is out of my personal savings or my land is my ancestral land, I can take a plea that I have transferred the development of rights not in course or furtherance of business. So it is not in course. So in case of individual, this stand can be taken that it is not in course or furtherance of business. And again, as I suggested, in this case, agreement should be drafted in a proper manner. Okay sir. हमारी नेक्स्ट क्वेरी है मिस्टर अनोनिमस. उनका क्वेरी है द डेवलपर प्रमोटर पेड जीएसटी ऑन आरसीएम बेसिस on TDR only after completion of the project, but the landowner arises liability for the area sold before completion. In this case, how the landowner get ITC on the tax paid by the developer? ये क्वेरी मैंने स्पेसिफिकली अपने इस डिस्कशन में हाईलाइट किया है प्रॉब्लम कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट होता है, और मैंने स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द डिस्कशन ये आंसर किया है कि इस केस के अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट को इंटीमेट करके बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई हम अपना इनवॉइस रेज कर सकते हैं और सो दैट लैंड ओनर अपना क्रेडिट ले सके. ओके सर नेक्स्ट क्वेरी है संजय जैन जी की. ही इज आस्किंग वेदर आईटीसी इज अवेलेबल फ्रॉम 1st April 2019 टू इवन लैंड ओनर्स who sell construction property being developed by developers. So what I understood from the query, they are asking कि
ITC इज अवेलेबल 1 अप्रैल 2019 के बाद लैंड ओनर को? द आंसर इज यस। कौन सा ITC मिलेगा लैंड ओनर को? जो डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन सर्विस में लैंड ओनर से चार्ज किया है, सिर्फ उसी का क्रेडिट अलाउड है टू द लैंड ओनर। बट उसकी भी लिमिटेशन है कि लैंड ओनर ने वो फ्लैट्स प्रायर टू CC बेचे हो और उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया। सो लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे 25% एरिया के अंदर लेट्स से देयर आर 100 फ्लैट्स। सो उस 100 फ्लैट्स के ऊपर डेवलपर ने लैंड ओनर को टैक्स चार्ज किया। अब उस 100 फ्लैट्स में से प्रायर टू CC लैंड ओनर ने 80 फ्लैट्स बेच दिए। तो लैंड ओनर को जो क्रेडिट मिलेगा कंस्ट्रक्शन डेवलपर की इनवॉइस पे, वो 80 फ्लैट्स के अगेंस्ट मिलेगा। और उस 80 फ्लैट के अगेंस्ट का जो क्रेडिट है उसकी भी अपर लिमिट ये है कि जितना लैंड ओनर ने उस 80 फ्लैट्स के ऊपर आउटपुट पे टैक्स दिया है उतना ही क्रेडिट मिलेगा। Okay, so next question है राजेश जी का. He is saying when developer will charge 1% on flat value from land owner, then 1/3 value of land value is not deducted. Please elaborate. No. First of all, तो I want to clarify that the tax rate is 1.5%, and after 1/3 deduction, the land value is 1%. So I'm not saying कि land की deduction नहीं मिल रही है. I am saying कि by doing this, land की deduction 1/3 standard देना is incorrect, because in Delhi cases, in states like Delhi, जहां पर 80% वैल्यू लैंड की होती है, वहां पर अगर आप 1/3 वैल्यू लैंड की डिडक्शन देंगे तो आप इनडायरेक्टली लैंड को भी टैक्स कर रहे हैं। Okay. So next question है राजेश जी का. He is saying when flat is cancelled after 2 years, so how credit note will be issued and reversal of GST can be done? इस केस में द पॉइंट इज वेरी वैलिडली रेज्ड, बट सी जब फ्लैट कैंसल्ड हो जाता है तो इट शुड बी कंसीडर्ड दैट सप्लाई हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड। सो एज फार एज क्रेडिट नोट की लिमिटेशन की पॉइंट है जो सेक्शन 34 से गवर्न होता है, तो वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, इफ वी लिटरली सीन दैट। तो इस केस में हम, बिकॉज सप्लाई नहीं हुई है, तो हम रिफंड के लिए जा सकते हैं सेक्शन 54 के अंदर। अब सेक्शन 54 के अंदर एक पॉइंट आता है लिमिटेशन का कि 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। तो वहां पर हम सेक्शन 54 में एक प्ली ले सकते हैं कि जिस मोमेंट पे फ्लैट कैंसिल हुआ, रिफंड उस डेट से अराइज हुआ था, और 2 साल का लिमिटेशन सेक्शन 54 का वो फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फ्लैट से अराइज होना चाहिए, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। सो इस केस में वी हैव टू आर्ग्यू द केस saying that section 34 is not applicable. So therefore, because it's not a supply of service, once a flat is cancelled, so credit note limitation is not applicable here. And since there is no supply, the refund is eligible under section 54, and the limitation, if at all applicable, should be from the date of cancellation of flat. Okay. So last question है Dipanshu जी का. He is asking what should be the periodicity to discharge GST on works contract service? Is it totally dependent on agreement? So works contract is a continuous supply of service because it continues for more than 3 months. If it is not continue more than 3 months, तो ये normal supply है, section 13 से govern होगा. If it is a more than 3 months works contract which is in journal, so it's a continuous supply of service. Continuous supply of service के केस में जो invoice की requirement है वो section 31(5) से govern होती है। वो बोलता है कि आपको अगर एज पर एग्रीमेंट आपका पेमेंट शेड्यूल डिफाइन है, तो जब जब वो पेमेंट रिसीव करने, पेमेंट ड्यू का पॉइंट आता है, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। अगर आपका एग्रीमेंट में वो नहीं है, तो जब जब आपको पेमेंट मिलती है इन एक्चुअल, तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई आपको इनवॉइस रेज करना है। सो देयर आर 2 थिंग्स, अगर वो टाइम पीरियड पेमेंट आने का डिफाइन है एग्रीमेंट के अंदर, तो वो डेट जब पेमेंट ड्यू हो जाएगी, और अगर वो डिफाइन नहीं है तो जब पेमेंट आएगी। तो और अगर कोई इवेंट जो एग्रीमेंट में लिंक्ड है पेमेंट से, वो इवेंट, तो उस केस में आपको तब इनवॉइस रेज करना है। और जब आपकी इनवॉइस रेज करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग आपका टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होगा। Okay. Thank you so much, sir. We are done with the queries. Any last line you want to say about this session?
No, I want just to thanks to you, Vineet ji, Keshav, and the Chatterpreneur, and to the Shashank ji especially. So I thank your team to make a bridge between all the audience and me, and to enlighten all everyone, including me, because मैं जब भी इसको कोई भी सेशन लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, जब पढ़ रहा होता हूँ तो हर बार कुछ एक नया देखने को मिलता है मुझे. So it is also helpful for me as well. And I thanks to everyone. So thank you so much for sharing your time and sharing your valuable knowledge. And now we got one more query from the Panshuji. The Panshuji will take care of your queries later on. So thank you everyone for joining us. Thank you so much. Thank you everyone. Okay, thank you. Thank you so much, sir. Thank you.